Good morning, students. I am your English teacher, and we have completed chapter 9 in English, and it was the first part of the Great Stone Face. Now we are starting part 2 and chapter 10, the Great Stone Face 2. Now see, many years passed. Ernest was now a man of middle age. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. But what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? Let us read and find out. बहुत साल बीत गए। अर्नेस्ट जब मिडल एज का था, उसके नेबर्स के लिए, जिन्हें कभी शक नहीं हुआ था कि वो एक साधारण, एक नॉर्मल और परिचित चेहरे से ज़्यादा कुछ नहीं था, एक विनम्र, विचारशील और मेहनतू व्यक्ति था। पर वो ओल्ड प्रोफेसी का क्या हुआ? वो ओल्ड भविष्यवाणी का क्या हुआ? क्या वो पूरी हुई? लेट अस सी। चलो हम इस चैप्टर में ये देखते हैं। The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. साल तेजी से गुजरते गए और अर्नेस्ट के बाल सफ़ेद हो गए और माथे पर झुर्रियाँ और गालों पर गहरी लकीरें पड़ गई। He was an old man, but not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. वह अब बूढ़ा हो गया था। उसके बेकार में बुढ़ापा नहीं आया था। उसके सिर के सफ़ेद बालों से कई ज़्यादा विवेकपूर्ण विचार उसके दिमाग में थे। And Ernest had ceased to be obscure, unsought for, undesired, had come to the fame which so many seek. अर्नेस्ट अब अननोन पर्सन नहीं था, उसे दूसरे लोगों से अलग नामना मिल गई थी। He had become famous beyond the limits of the valley. College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. And he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost, or lay deepest in his heart or their own. While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. घाटी के बाहर भी वो फेमस हो गया था। दूर दूर से कॉलेज प्रोफेसर और शहरों के प्रभावशाली लोग अर्नेस्ट से मिलने और उसके साथ बात करने के लिए आते थे। वह आदर भाव से उनका स्वागत करता था और अपने मन की गहराई और खुले विचारों से बात करता था। जब वो आपस में बात करते थे, उसके चेहरे पर चमक आ जाती थी, जो शाम की एक हल्की रोशनी की तरह अनजाने में बातचीत करने वालों पर पड़ने लगी थी। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, उस समय गॉड ने उस घाटी को एक नया कवि दिया था। वह भी इस घाटी का मूल निवासी था, लेकिन मधुर संगीत की सुगंध फैलाते हुए उसने जीवन का ज़्यादा भाग दूर शहरों में गुजारा था। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. The songs of this poet found their way to Ernest. He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. "O great stone face," he said, "is not this man worthy to be your likeness?" The face seemed to smile but did not answer. अब ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा भुलाया नहीं गया, क्योंकि इस कवि ने अपनी कविता के माध्यम से उसे मशहूर किया था, फेमस किया था। उस पोएट के गीत, सॉन्ग्स अर्नेस्ट तक आ पहुँचे। वह अपना दिन का काम पूरा करने के बाद अपने घर के सामने बेंच पर बैठकर पढ़ा करता था, और पढ़ते वक्त वो पर्वत की ओर देखा करता था। वो ग्रेट स्टोन फेस की ओर देखा करता था। ओ पत्थर के विशाल चेहरे, क्या ये व्यक्ति तुमसे समानता रखने के योग्य नहीं है? और वो ग्रेट स्टोन फेस मुस्कुराता हुआ, स्माइल करता हुआ दिखाई देता, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देता था। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest, but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life.
ऐसा हुआ कि कवि ने जो भले ही दूर रहता था, ना सिर्फ अर्नेस्ट के बारे में सुना था, लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में भी बहुत सोचा था और उससे मिलना चाहता था, जिसकी बुद्धिमत्ता और जीवन की सादगी एक जैसी सिमिलर थी। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. इसलिए गर्मियों के दिन कवि अर्नेस्ट के घर आ पहुंचा। वहां उसने भले बूढ़े व्यक्ति को बुक रीड करते देखा, साथ ही वह कभी कभी पन्नों के बीच में, पेजेस के बीच में अपनी फिंगर रखकर प्यार भरी नजरों से पर्वत की ओर भी देख लेता था। गुड इवनिंग, सेड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट्स शेल्टर? Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. कवि ने गुड इवनिंग के साथ कहा कि क्या आप आज रात एक यात्री को यहाँ ठहरने देंगे? मुझे खुशी होगी, अर्नेस्ट ने आंसर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे विचार से मैंने पत्थर के इस चेहरे को किसी अजनबी की ओर इतनी दयालुता से निहारते देखते हुए कभी नहीं देखा है। The poet sat down beside him, and he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. Who are you, my gifted guest? He asked. The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. You have read these poems, said he. You know me then, for I wrote them. Again and again Ernest examined the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. यहाँ पर कवि उसके पास बैठ गया और दोनों बातें करने लगे। इससे पहले कवि ने अर्नेस्ट जैसे बुद्धिमान, नेक और दयालु व्यक्ति से कभी बात नहीं की थी। दूसरी ओर अर्नेस्ट भी कवि के बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों से इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ और उसके बिना न रह सका। जिस टाइम पे अर्नेस्ट कवि की बातें सुन रहा था, वह कल्पना कर रहा था, इमेजिन कर रहा था कि पत्थर का विशाल चेहरा भी बातें सुनने के लिए आगे झुक रहा है, बेंड हो रहा है। उसने कवि की आंखों में झांक कर देखा, उनसे पूछा, आप कौन है मेरे प्रतिभाशाली मेहमान? कवि ने अपनी उंगली उस बुक पर रखी जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। उसने कहा, आपने ये पोएम्स पढ़ी है? और कहा, तब आप मुझे जानते हैं क्योंकि ये मैंने ही लिखी है। अर्नेस्ट ने बार बार कवि को ध्यान से देखा। उसने मुड़कर पत्थर के विशाल चेहरे को देखा, फिर पीछे मुड़कर कवि को देखा। उसने अपना सिर हिलाया और एक ठंडी सांस ली, क्योंकि यहाँ पर अर्नेस्ट को ऐसा लग रहा था कि जो पोएट है वो ग्रेट स्टोन फेस के साथ उनके कुछ फीचर्स सिमिलर है। जो पोएट का चेहरा है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। Why are you sad? Inquired the poet. Because, replied Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hope that it might be fulfilled in you. कवि ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? अर्नेस्ट ने कहा, क्योंकि मैं सारा जीवन एक भविष्यवाणी पूरी होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, और जब मैंने ये कविता पढ़ी, रीड की, तो मुझे आशा है कि ये आपके द्वारा ही, आपके थ्रू ही पूरी होगी। You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. कवि ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, आपको आशा थी कि आपको मुझ में पत्थर के विशाल चेहरे की समानता देखने को मिलेगी, लेकिन मैं उस समानता के योग्य नहीं हूँ। I am not worthy to be its likeness. And why not? Asked Ernest. He pointed to the book. Are you not those thoughts worthy? You can hear in them the distant voice of a heavenly song. और क्यों नहीं? अर्नेस्ट ने पूछा। उसने पुस्तक की ओर संकेत दिया, साइन दिया। क्या थे विचार इस योग्य नहीं है? क्या आपके थॉट्स इस योग्य नहीं है? आप इनमें दूर से आती किसी अलौकिक गीत की आवाज़ सुन सकते हैं। बट माई लाइफ, डियर अर्नेस्ट, हैज़ नॉट कॉरेस्पॉन्डेड विथ माई थॉट्स. आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स. लेकिन प्रिय अर्नेस्ट, मेरे जीवन और विचारों में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है। मैंने बहुत बड़े सपने देखे, लेकिन वो सिर्फ सपने ही रहे हैं। Sometimes I lack faith in my own thoughts. Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain?
The poet spoke sadly and his eyes were wet with tears. So too were those of Ernest. कभी कभी मुझे अपने ही विचारों पर अविश्वास होने लगता है, फिर भला आप जैसा नेकी और सच्चाई का जिज्ञासु मुझे पर्वत का चेहरा देखने की आशा क्यों करता है, मेरे अंदर ग्रेट स्टोन फेस देखने की एक्सपेक्टेशन क्यों रखता है। कवि उदास आवाज में बोला और उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई, और इसी तरह अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू आ गए। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place, arm in arm. जैसा उसकी पुरानी हैबिट थी, अर्नेस्ट शाम के टाइम पड़ोसियों के खुले मैदान में संबोधित करता था। कवि और दोनों हाथ पकड़कर वो स्पॉट पर, वो प्लेस पर गए। वहाँ से पत्थर का विशाल चेहरा दिखाई देता था, क्योंकि वहाँ से वो लोग ग्रेट स्टोन फेस को देख सकते थे। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, ही बिगैन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड। His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. अर्नेस्ट ने अपने मुस्कान, अपनी स्माइल ऑडियंस पे डाली, भाषण की उसके शुरुआत की। उन्होंने लोगों को अपने दिल और दिमाग की बातें बताई। उसके विचारों में रियलिटी और डेप्थ यानी कि गहराई थी, क्योंकि वह उसके लाइफस्टाइल से मैच होते थे। जो कुछ उसने कहा वह शब्दों का दिखावा नहीं था। इट वॉज नॉट ओनली वर्ड्स, वह जीवन का सार था और एक अच्छे कार्यों और निस्वार्थ प्यार का संगम। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट प्रीचर अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। A life of good deeds and selfless love was melted into them. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a saint as that mild, sweet, thoughtful face, with the glory of white hair diffused about it. जब पोएट ने ये सुना तो उसने महसूस किया कि अर्नेस्ट का जीवन, उसकी लाइफ और कैरेक्टर उसके द्वारा लिखे काव्य यानी पोएम से कई ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने खुद से कहा कि कभी ऐसे सौम्य, मधुर, विचारशील चेहरे वाला व्यक्ति नहीं हुआ जिसके सफ़ेद बालों की आभा उसके चेहरे के चारों ओर फैली हो, स्प्रेड हुई हो। At a distance, but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist round it, like the white hairs around the brow of Ernest. दूर ऊंचाई पर, हाइट पर सनसेट के सुनहरे प्रकाश में पत्थर का विशाल चेहरा ग्रेट स्टोन फेस दिखाई दे रहा था, जिसके चारों ओर अर्नेस्ट की आईब्रो के चारों ओर के सफ़ेद बालों के समान मिस्ट छाई हुई थी। At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone face." उसी टाइम अर्नेस्ट के चेहरे पर ऐसा शानदार भाव उभर आए कि कवि अपने हाथों में उठाकर चिल्लाया, उनका हाथ अपने हाथों में उठा के शाउट किए, देखो देखो, खुद अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस का प्रतिरूप है। Then all the people looked and saw that what the poet said was true. The prophecy was fulfilled. भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई। But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. फिर सभी लोगों ने देखा कि जो कुछ कवि ने कहा था वो सच है। भविष्यवाणी पूरी हुई थी, कहानी पूरी हो गई। लेकिन अपनी बात पूरी करने के बाद जब अर्नेस्ट कवि का हाथ पकड़े धीरे से अपनी घर की ओर चला, तो वह अब भी यह आशा कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई उससे भी बुद्धिमान, बेटर और श्रेष्ठ व्यक्ति आएगा जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से समान होगा। सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर. Read and revise it once again. Thank you.